Hi, good morning, my dear student. Today we are going to discuss in class 12th history, chapter Kings, Farmers and Towns. Okay, my dear student, in this chapter, as you know that we have studied about that the condition of the changes of the 6th century BC and onwards. We have studied about 6th century BC social, economical, political and cultural also, cultural structure. I think there is no need to explain about the things which I wrote here. Dear student, if you have remembered my previous class where I already informed you about all these points, I think we focus first the political condition of the Magad and of the Mahajanpadas, and in that topic I taught you about that Mahajanpadas, as well as the Ganas, the 16 Mahajanpadas, 16 Mahajanpadas and 10 Ganas. The evidence which we have about this Jainism and Brahmanical text, both दोनों के बारे में जानकारी के लिए हमें इन तीन स्रोतों पे डिपेंड करना पड़ता है। स्पेशली 16th महाजनपद की अगर हम बात करें, 16 महाजनपद की अगर हम बात करें तो इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण चीजें थी व्हाट आई टोल्ड यू इन माय प्रीवियस क्लास दैट नॉट ओनली 16 Mahajanpad, but also in some text, कुछ किताबों में like Panini's Ashtadhyayi, as you know that Panini's, he was the great grammarian during 6th century BC. The Ashtadhyayi, in which he explained the 22 Mahajanpad, and Chulnidesh, it explained 12 Mahajanpad, and as far as the matter of other text,
और भी किताबों की अगर हम बात करें तो कुछ ऐसे भी बुक्स हैं जिनमें इन महाजनपदों के नाम भिन्न भिन्न प्राप्त होते हैं। आई होप यू हैव रिमेंबर दैट द टू टेक्स्ट विच आई एक्सप्लेन फर्स्ट दैट वाज अंगुत्तर निकाय प्लस भगवती सूत्र, एक जैन टेक्स्ट है ये एंड दैट इज द बौद्धिस्ट टेक्स्ट। दोनों में 16 महाजनपदों के नाम मेंशन है, लेकिन दोनों के नामों में वेरिएशंस हैं, वेरिएशन इन नेम। थोड़े बहुत नामों के चेंजेस के बाद इस तरह का जो विवेचन मिलेगा आपको, एक बात तो क्लियर थी। आई मीन टू से दैट वन information that was clearly given in the text that during 6th century BC the 16th Mahajanpad that was in existence, not only in the northern part, according to Anguttar Nikaya, only one state, only one provinces, only one Mahajanpad who was situated in the southern part, that was Asma. But according to Parmenas and according to Parmenas and according to पंचमार्ग की साउदर्न पार्ट ऑफ इंडिया में भी इन महाजनपदों का विस्तार था, क्योंकि केरल से एक पंचमार्ग मिल रहा था। तो जो केरल से पंचमार्ग मिला वो ये प्रूव कर रहा था कि नॉर्थ टू साउथ कंप्लीट पार्ट में इंडियन कॉन्टिनेंट के महाजनपदों का विस्तार था। लेकिन अधिकांशतः इतिहासकार, आई मीन टू से दैट मोर हिस्टोरियंस, दे बिलीव दैट द महाजनपदास दैट वाज ओनली फ्लोरिश्ड इन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया एक्सेप्ट वन दैट वाज अस्मक। बट वी never denied and we should not deny that कि साउदर्न पार्ट इंडिया में भी कुछ राज्य रहे होंगे। As far as the matter of Mahavastu, where I told you that was the Buddhist text in which explained the 16 Mahajanpad, but name was the Gandhar and Kamboj, who was situated in the northern part of India, northwestern part of India. Gandhar and Kamboj name was not mentioned in Mahavastu. On that place, the two other Mahajanpadas name there was Dasar and Sivi. तो इसके आधार पे भी हम कह सकते हैं कि महाजनपदों के अलग अलग नामों का उल्लेख मिलता है। सिमिलरली जो 10 गणराज्य थे, 10 गणराज्य जो थे, इन 10 गणराज्यों के भी बारे में भी रिच डेविड्स ने 1903 में जो इंपीरियल थॉट्स थी, इंपीरियल विचारधारा थी कि केवल भारत में 16 महाजनपद थे, मोनार्कियल फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट से कंट्रोल होते थे, सिर्फ वही थे, इसके अलावा और किसी भी राज्य का अस्तित्व नहीं था। रिच डेविड्स ने इस बात को चैलेंज किया और उन्होंने तत्कालीन बौद्ध ग्रंथों, जैन ग्रंथों और ब्राह्मण ग्रंथों का सहारा लेते हुए ये प्रूफ किया कि उत्तर भारत में उस समय 10 गणराज्यों का भी अस्तित्व था। दैट इज ओलिगार्कियल फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट वाज आल्सो इन एग्जिस्टेंस ड्यूरिंग 6th century BC. The name was also I have explained with you in your previous class. My dear student, Rich Davids, he taken the evidence from the different text, like जैसा कि मैंने आपसे कहा था, उदान कल्प से, महावस्तु से, बौद्ध ग्रंथ से, महाभारत से, और मैंने आपको कुछ बातें कही थी। मैंने कहा था कि महाभारत में कहा गया क्षत्रियाधिक प्रतिषेधार्थकम, जैसे शब्दों का उल्लेख है कि क्षत्रियों से अलग हट के इस राज्य में दूसरे लोगों का शासन था। फिर मैंने आपसे कहा था, एक और सूक्ति मैंने बताई थी, मैंने कहा था कचित देशे गणाधीना कचित राजाधीना। ये बात साउथ इंडिया गए हुए व्यापारी
नॉर्दर्न पार्ट के थे जो साउथ इंडियन पीपुल से बता रहे थे, जब साउथ इंडियन पीपुल नॉर्थ इंडियन पीपुल से इस बात को पूछ रहे थे. आई मीन टू से दैट व्हेन द साउथ इंडियन पीपुल्स आस्क्ड दैट विच टाइप ऑफ गवर्नमेंट रनिंग in the south northern part of India, northern part of Indian peoples who reached in southern part of India, who visited southern part of India, they replied them that Kachit Desi Gadadhina, Kachit Rajadhina. It means some states which was controlled by monarchical form of the government and some states which was controlled by the group of the Rajas, that is oligarchy form of the government, that is Gana. तो ये दोनों बातें, इसके अलावा पाणिनि ने भी अपने अष्टाध्यायी में इस बात का उल्लेख किया है कि उस समय गणों का भी शासन था. तो ये चीजें मैंने आपको कल की क्लास में, लास्ट 3 क्लासेस में मैंने इन सारी चीजों पे डिटेल किया था. एक एक पॉइंट्स को मैंने प्रॉपरली एक्सप्लेन किया है. सो माय डियर स्टूडेंट, टुडे वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड द नेक्स्ट महाजनपद दैट बिकम वेरी पावरफुल, दैट वाज मगध. I hope you have remembered that when I completed the 16 Mahajanpad topic, I told you that among 16 Mahajanpad, the 4 Mahajanpad became more powerful. The whole Mahajanpad that was prey, that was what? That was क्या हुए? वो शिकार हुए, प्रे हुए किसके? इन साम्राज्यवादी नीतियों का, इन 4 महाजनपदों के. और फिर फाइनली मगध महाजनपद में सारे महाजनपदों का विलय कर लिया गया. मैंने उन 4 महाजनपदों के नाम बताए थे आपको. अगेन आई एम गोइंग टू रिमाइंड यू द नेम ऑफ द 4 महाजनपदास, दैट वाज द कोसल, वत्स, अवंती एंड मगध. एंड फाइनली द मगध बिकेम द कंप्लीट इंपीरियल फॉर्म, साम्राज्यवादी साम्राज्यिक राज्य के रूप में मगध का विकास हुआ. तो ये जो चीज़ें थी, 1 बाय 1, स्टेप बाय स्टेप, मैंने इन सारी चीज़ों की चर्चा आपसे की थी आपके प्रीवियस क्लास में. आज हम लोग जिन चीज़ों पे बात करेंगे, दैट इज द राइज ऑफ मगध. माय डियर स्टूडेंट, द राइज ऑफ मगध, व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड दैट? क्या कारण थे इसके पीछे? व्हेन मगध बिकम मोर पावरफुल देन अदर महाजनपदास who similarly flourished, जो उसके साथ साथ विकसित हुए थे. I told you that 650 BC, that was the time when we observed the towns or city like structure in the northern part of India, that called Janpad and Mahajanpad. And also I told you that definition of Janpad. Jan it means people, Pad it means food. It means when the people habitate himself particular place, this place is called Janpad. And then after the development of Janpad, gradually it changed their feature and called Mahajanpad. तो ये सारी चीज़ें हमने आपसे बात की थी. और फिर हमने आपसे कहा था कि क्या क्या कारण थे जो इस महाजनपद के विकास के, इस महाजनपद के अभ्युदय के, मगध महाजनपद को एक साम्राज्यिक महाजनपद बनने में मदद की. I hope you have remembered. I hope you will read your book. The topic which is given in your book, I think 2.2 in NCERT, the first amongst the 16th, that was Magad. This topic explained you clearly that how Magad became powerful. And even if I will taught you the some other information regarding that, so please note at that point. It is very important. This question is asked for CBSE in your main exam again and again. So डियर स्टूडेंट, आप उन चीज़ों पे ध्यान दीजिए, उन चीज़ों को समझिए, उन चीज़ों पे माइन्यूटली ऑब्जर्व करिए. आई होप you will be understand what I am saying. Okay, let us come and discuss the point that is Magad Mahajanpad. But before start Magad, I would like to tell you that in your NCERT, after that point, we will direct reach on the topic the Mauryan dynasty. We will not study about that the different dynasties who ruled on Magad, like Haryank once, that was the first dynasty. Bimbisar was the founder of Haryank dynasty. Then after Sisunag was the founder of Nagvans, I mean to say the Nag dynasty. And then after
शिशुनाग के बाद नंदों का शासन आया, नंद और फिर मौर्य ने पूरे मौर्य साम्राज्य को अपने पार्ट में मिला लिया। तो इन बीच के तीन राजवंशों के बारे में हम विचार नहीं करेंगे, क्योंकि दिस वॉज नॉट गिवन इन योर सिलेबस। It means we will not read about that Bimbisar, Ajasatru. We will not read about that Uday Bhadra, Sisunak, Kalasok, and also we will not discuss about Ghananand, Mahapadmanand and Navnand. Directly we will reach the point, the Mauryan dynasty, and even in Mauryan dynasty we will study that not Chandragupta Maurya, not Bindusar, directly Asokas. But dear student, I will give you information first about that the Mauryan empire and evidences, then after little bit information which was given by me in your class, that will be Chandragupta, and little bit we will discuss Bindusar, and then after we will reach the topic Piyadasi or Asokas. तो इस तरीके से हम एक भिन्न भिन्न टॉपिक्स पे डिफरेंट बिंदुओं पे बात करेंगे और हम इन चीज़ों को समझने का प्रयास करेंगे. वी विल try to understand all these points. Even according to your NCERT, your syllabus is so less, because in this chapter we are, as you know, that we study about the 6th century BC to 6th century C. It is very easy to say that the 1000-year history you have to read in one chapter, only some pages. So it is too difficult. आप समझ सकते हैं कुछ लिमिटेशंस हैं, कुछ चीज़ें हैं जिनको हम यहाँ पे नहीं बताएंगे. हम सिर्फ आपके चैप्टर में उन टॉपिक्स पे बात करेंगे, उन चीज़ों पे बात करेंगे जो आपके सिलेबस में दिया हुआ है. वॉट एवर यू वांट यू कैन डिस्कस मी इन माय ऑनलाइन क्लास, एंड देन आफ्टर माय डियर स्टूडेंट यू कैन आल्सो स्टडी in your senior classes when you will be the student of graduation. I mean to say that the BA part 1, BA part 2, BA part 3. तो इन चीज़ों के बारे में विस्तार से जानकारियाँ आप सीनियर क्लासेस में प्राप्त करेंगे. वहाँ पे आप इन चीज़ों को प्रॉपरली समझ सकेंगे कि क्या है उन चीज़ों के में और उनके चैप्टर्स, उनके बीच का क्या महत्व है. I also become very astonished when the Nanda dynasty is not given in the book. Even the Nanda dynasty was the more powerful dynasty before Mauryan dynasty. Nanda dynasty was the first dynasty who united the southern part of India as a Magad empire. I mean to say the Magad empire के रूप में southern part of India के क्षेत्रों को जीतने का काम सबसे पहले नंदों ने किया. उड़ीसा को नंदों ने जीता, जिसको अशोक ने कलिंग वार में दोबारा जीता. उड़ीसा में एक कलिंगराज खारवेल की एक इंस्क्रिप्शन मिलता है उदयगिरी और खंडगिरी की पहाड़ी पे, जिसपे साफ साफ लेख है कि जिनकी प्रतिमा को जो मगध का शासक उठा ले गया था, कलिंगराज खारवेल ने उत्तरा भारत का अभियान करके जिनकी प्रतिमा को ले आया और वहां से एक नहर तनसुली का निर्माण करता है. तो ये चीज कलिंगराज खारवेल अपने अभिलेखों में देते हैं, जिससे ये प्रूव होता है कि नंदों ने कलिंग को जीता था. इट मीन्स कि उड़ीसा तक के क्षेत्रों को उन्होंने आक्रांत किया था, अपने राज्य में मिलाया था. इसके अलावा कुछ और ग्रंथ हैं. नवनंद देहरा प्लेस है कर्नाटक में, जहाँ पे आंध्र और कर्नाटक की सीमा के पास, जहाँ पे नवनंद देहरा है. नवनंद छोटे छोटे नगर हैं नंदों के नाम पे. ये क्षेत्र वहाँ पे कैसे बसे होंगे यदि अगर नंदों ने उन क्षेत्रों को नहीं जीता होगा तो. आई मीन टू से दैट कि इस पॉइंट्स को भी अगर आप ध्यान रखें, इफ यू विल कंसीडर दिस पॉइंट यू कैन इजीली अंडरस्टैंड दैट व्हाट आई वांट टू टेल यू, दैट नंद डायनेस्टी आल्सो द मोर पावरफुल डायनेस्टी. वी शुड नेवर फॉरगेट. एंड एज फार एज द मैटर ऑफ हिस्ट्री, आई डोंट नो कि क्यों इन चीज़ों को एक्सप्लेन नहीं किया जाता है. व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड इट. एज ए स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री, व्हाट आई फील दैट इट शुड आल्सो डिस्कस इन योर सिलेबस. आपके सिलेबस में इसे भी डिस्कस करना चाहिए कुछ पॉइंट्स के आधार पे. सो आई होप यू आर गेटिंग अंडरस्टैंड. आप समझ रहे हैं कि मैं क्या कह रहा हूँ. लेट अस कम योर पॉइंट्स. द टॉपिक इज द राइज ऑफ मगध. इन दिस टॉपिक वी विल गोइंग टू स्टडी दैट व्हाट वाज द causes behind Magad to become more powerful. Why Magad rise as a imperial
तो माय डियर स्टूडेंट, अगर इस पॉइंट को पढ़ना है तो इसको भी हम विभिन्न कैटेगरी में बांट के पढ़ेंगे। हम इनको छोटे छोटे पार्ट में तोड़ के तब इसको एक्सप्लेन करने का प्रयास करेंगे। जैसे अगर हम मगध की बात करें तो मगध वैदिक टेक्स्ट में, जो उत्तर वैदिक काल में लिखे गए थे सप्त सैंधव प्रदेश में, वहाँ पे लेटर वैदिक काल के ग्रंथों में कहा गया है कि हम लोग वो भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हम लोग अपने प्रदेशों में सीमित रहें, सप्त सैंधव प्रदेशों में ही सीमित रहें। सप्त सैंधव प्रदेश कौन से थे? जो 7 नदियों से सिंचित था, देवकृत योनि के नाम से जानते थे वो लोग। जब सतपथ ब्राह्मण की एक कथा आती है जहाँ पे विदेह माता अपने मुंह में आग की ज्वाला लेते हुए पूरब की ओर बढ़ता है, जंगलों को जलाता हुआ वो तेजी से आगे बढ़ता है, लेकिन सतपथ ब्राह्मण का ये आग निकालता हुआ मानव विदेह माधव जब सदा नीरा के तट पे पहुंचता है तो उसके मुख की ज्वाला बुझ जाती है और फिर वहां से उसको रिटर्न बैक होना पड़ता है। और यही सदा नीरा, इट मीन्स गंडक, जो सीमा बनाती थी मगध की, वो अब जो उत्तर वैदिक काल के ग्रंथों में कहा गया है इसे कीकट प्रदेश के नाम से जानते हैं। और कहता है कि कीकट प्रदेश के लोगों को जलोदर हो जाए। कीकट प्रदेश के लोग क्या है? वैदिक रीति रिवाज को नहीं मानते। कीकट प्रदेश के लोगों को वर्णाश्रम व्यवस्था का ज्ञान ठीक से नहीं है। तमाम सारे आरोप प्रत्यारोप इन प्रदेश के लोगों के ऊपर लगाते हैं और फाइनली इसका एक्सपेंशन यहाँ पे उत्तर वैदिक काल में नहीं होता, जिसका उल्लेख वैदिक साहित्यों में भरा हुआ है। सतपथ ब्राह्मण स्पेशली इस बात का उल्लेख करता है। फिर इसके अलावा और भी चीजें थी जिसको आप पॉइंट आउट कर सकते हैं मगध महाजनपद को एक्सप्लेन करते वक्त। तो मगध को यदि आप एक्सप्लेन करें तो व्हाट आई given in your book, I think if you will see, if you will read your book, that is the very little bit line given about that कि मगध क्यों डेवलप हुआ। कहता है between the 6th and 4th century BC, Magad in present day Bihar became the most powerful Mahajanpad. Modern historians explain this development in the variety of ways. Magad was a religion. Magad was a religion. Magad was a region where the agriculture was especially productive. Beside iron mines in the present day Jharkhand, extremely sorry. Let us come on topic. What your book given? I mean to say that according to your book, it is very clearly explained that the Magad Mahajanpad became powerful because Magad was a region where agriculture was especially productive. Beside iron mines were accessible and provided resource for tools and weapons. Elephant and important components of the army were found in forest in this region. Also, the Ganga and its tributaries provided a means of cheap and the convenient communication. However, early Buddhist and Jain writers who wrote about Magad attribute its power the policies of individuals. The ruthless, ambitious king of whom Bimbisar, Ajatsatru, Mahapadmanand are the best known, and their ministers who helped implemented their policies. My dear student, this was the reason. आपके बुक में, आपके एनसीईआरटी में सिर्फ इतने पॉइंट्स बताए। चलिए अगर इन पॉइंट्स को सॉर्ट आउट करते हैं, इन पॉइंट्स को लिखते हैं। लेट अस सी द कॉजेस। कॉजेस क्या थे? रीजन क्या थे? कहता है कि कई सारे रीजन्स, वन बाय वन हम इस पे देखेंगे एक एक पॉइंट्स को जो आपकी एनसीईआरटी लिखती है। कहता है अकॉर्डिंग टू योर बुक द मगध रीजन वेयर एग्रीकल्चर वाज स्पेशली प्रोडक्टिव, एग्रीकल्चर was more productive next point that was
without any hesitation you have to mention here iron mines. Iron mines nowadays in Jharkhand, iron mines is available. कहता है iron mines were accessible and provided resource किसके लिए क्या देता है? तो कहता है कि एग्रीकल्चर इक्विपमेंट्स, कहता है फॉर टूल्स एंड वेपन्स, फॉर टूल्स एंड वेपन्स। अब यहाँ पे एग्रीकल्चर टूल्स और वेपन्स आपको आयरन के आने से मिल जाते हैं। देन आफ्टर फॉरेस्ट से एलिफेंट, एंड देन आफ्टर एलिफेंट एंड वुड, and the next point which is very important, which author want to indicate that the different thinkers who opposed the one system, who opposed the caste system, that was the Buddha and the Jain। ये इतने रीजन्स हैं जिनको आप इन शॉर्ट में एक्सप्लेन कर सकते हैं। My dear student, I hope according to that you can easily explain about that why Magad became powerful, Magad क्यों powerful बना, ये जो regions हैं उनके पीछे के उनको आप explain करते हैं। Like the agriculture was more productive, iron mines were accessible and provided resource for tools and weapons, forest, elephant, woods, and thinker Buddha and Jain, like the teachers who changed the whole structure, social structure. If you will discuss these points, you can easily understand that the social region, political region, even cultural region also, economical region also, that was the main causes to become मगध पावरफुल, मगध को ताकतवर बनाने के लिए, शक्तिशाली बनाने के लिए ये सारे कारण महत्वपूर्ण थे। एंड देन आफ्टर इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, एज यू नो द नेम ऑफ द कैपिटल ऑफ द मगध महाजनपद, दैट इज राजगृह। राजगृह, द प्राकृत नेम ऑफ द प्रेजेंट डे राजगीर इन बिहार, was the capital of Magad। Interestingly, the old name was House of the King Rajgah, was fortified settlements located amongst hill. Later in the 4th century BC, the capital was shifted up Patliputra, present day Patna, the commanding routes of the communication along the Ganga. My dear student, if you one region you can also mention that the capital of Magad, कैपिटल ऑफ मगध, व्हाट, ये क्या बना? तो कहता है कि ये राजगृह थी और जिसे गिरिवज्र के भी नाम से जानते हैं। गिरिवज्र, राजगृह और गिरिवज्र के नाम से कैपिटल को जानते हैं। राजगृह को अगर तोड़े छोटे छोटे शब्दों में तो आई थिंक इस चीज़ों को मैं एक बार फिर से यहाँ लिखता हूँ, आपको यहाँ पे शायद मैं बुक आपकी नीचे की लाइन नहीं देख शो कर पा रही है, तो मैं यहाँ पे इसको एक्सप्लेन करता हूँ। आई होप दिस इज इजली। कहता है कि
राजगृह, that is Sanskrit and Prakrit word. If you derive this word, the Raja Grih, it means house of king. इसकी मीनिंग हुई, फिर मगध की जो कैपिटल थी वो पाटलिपुत्रा बनी। पाटलिपुत्रा, मॉडर्न टाइम पाटलिपुत्रा कॉल्ड द पटना। आज का जो बिहार की राजधानी पटना है वो पाटलिपुत्रा के नाम से जानी जाती है और ये उसकी राजधानी बनी। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने बात की। आई मीन टू से दैट माय डियर स्टूडेंट, this is no doubt to show that little bit information, but in my next class I will explain this topic again, and I will teach you that the what is the actual region and how this region you can implement it to give your what, कि आप अपनी बातों को कहने के लिए किस तरीके से इन पॉइंट्स को एक्सप्लेन कर सकते हैं। इन चीज़ों पे हम कल इस पे बात करेंगे। आज के लिए इतना ही। गुड बाय एंड टेक केयर।